بہت ہی نیک دل انسان یہ فاروق جاذب ہیں، یہی رکھنا ہمیں ہے دھیان، یہ فاروق جاذب ہیں۔ اور سجی ہے آج کی محفل یہ جن کے واسطے منظر، سجی ہے آج کی محفل یہ جن کے واسطے منظر، ادب کی محفلوں کی شان یہ فاروق جاذب ہیں۔ ڈاکٹر سلطان حقیر ہاشمی صاحب نے ایک بند دو کھاج کر لیے، جاتے جاتے انہوں نے مجھے ہی پانی پلا دیا محبت کا، کہ تاکہ میں بھی شرابور ہو جاؤں، کسی لگوں کہ میں بھی کچھ کرتا ہوں۔ یہ ان کی محبتیں ہیں، ورنہ حقیقت یہ کہ ان لوگوں کو بنا بنا کے میں بن گیا، یعنی احمد ابراہیم مدنی کو نہ دیکھتا تو میں کچھ نہ بنتا۔ ان کی آڑی پیچھی لکیروں کو اگر میں کتابت کے ذریعے سجا نہ کرتا تو میں بھی کبھی قلمکار نہ بنتا۔ یعنی قلمکاروں کو اس بات پہ فخر ہے کہ وہ قلمکار ہیں، لیکن میرے پاس ایسی آڑی پیچھی لکیریں آئیں، ایسے ایسے بدخط آئے کہ میں نے ان کو دیکھ کے مجھے حوصلہ ملا کہ جب یہ آڑے پیچھے جو مصرے موضوع کرنا الگ بلکہ ان کی تحریر بھی نہ موضوع ہے، اس کو میں صحیح کر رہا ہوں، سجا رہا ہوں، سنوار رہا ہوں، تو یہ سجانے سنوارنے کا ادب پہ کیوں نہ کیا جائے۔ میں نے جو بزم قائم کی پہلی، اس کا بھی نام خوش نویسان ادب تھا، اور اس خوش نویسان ادب کے ذریعے کم از کم 3 ججز اور 2 IAS اور 3 ہی کتابوں کا رسم اجرا کیا۔ اس میں ہی محترم احمد ابراہیم مدنی صاحب تھے۔ اس وقت ان کی تاریخ بالکل نہیں تھی، لیکن جو کچھ اندر تھی وہ سب باہر آ چکی ہے۔ تو احمد ابراہیم مدنی صاحب نے جو کچھ ادب کے لیے کیا واقعی وہ بڑا کارنامہ ہے، اس لیے کہ مجھ جیسے دیہات کے آدمی کو سجا سوار کے انہوں نے کیا بنا دیا کہ آج میں لوگوں کا کیا کہتا رہتا ہوں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اتنا بگڑا ہوں تو ہمارے استاد کس منزل میں ہیں۔ اور جناب شاکر ہاشمی صاحب نے سچ کہا کہ وہ کاتب نہیں ہے، لیکن کاتب نہ ہو کر بھی کاتب کی کاوش کو انہوں نے اس حد تک نکال دیا کہ اس نے جتنے شعر پیش کر دیے وہ ابھی تک کسی مقالے میں نہیں آئے۔ یہ آپ سمجھ لیجیے، وہ صاحب نگاہ ضرور ہیں، انہوں نے یہ شعر پیش کیا، خود کہا انہوں نے کہ وہ فن کے نقطے کو جان لے گا، وہ فن کے نقطے کو جان لے گا، پڑھے گا جو بھی کلام جازب۔ تو کلام جازب سے جو انہوں نے نتیجہ اخذ کیا، واقعی وہ نگاہ ہے جو کسی ناطق کے پاس ہونا چاہیے، کسی پروفیسر کے پاس ہونا چاہیے، اور مقالہ نہ پڑھ کے بہترین گفتگو انہوں نے کی، جس کے اندر سے بہت سے جملے کشید کر کے اچھی تحریر بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کم ملے جاذب صاحب سے، لیکن آپ نے جذب و خیر، آپ کے اندر زیادہ معاملہ ہے، آپ نے محسوس کیا۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ عمر بھر ساتھ رہے اور تعارف نہ ہوا۔ اسی المیہ کی طرف میں نے ذکر کیا تھا کہ جن انجمنوں نے اور جن لوگوں کے لیے فاروق جاذب اور رفعت شیدہ صدیقی جیسے لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کر دیا بلکہ واقف کر دیا، وہ انجمنیں وادیاں نہیں ہیں۔ اگر ان پہ تکیہ کیا جائے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اس لیے ہمارے وجود سے انجمنوں کا وجود ہے جو لہلہاتا رہے گا۔ اگر ہم لوگ اسی طرح سے ان کو نوازتے رہے، انجمن کے صاحب بیاضوں کو اور گویوں اور سریوں کو، ان میں بہت سے لوگ شاعر بن گئے جو آج کھا رہے ہیں، اور فاروق جاذب اور ڈاکٹر معراج صاحب جیسے لوگوں کی جیل میں ٹھوٹی کوڑی نہیں آتی۔ اس حوالے سے اسی لیے کہا تھا سراج مثنوی نے کہ میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ، میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ، اور میرے پاس مانگے کا اجالا بھی نہیں۔ تو اس المیہ کے خلاف بھی آواز اٹھنا چاہیے، اور اس کا صدقات علمی صاحب کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک شاعر بھی سن لیا جائے، اس کے بعد جناب خلیل احسن نئی منظر صاحب کچھ کہا ہے؟ آئیے بالکل آئیے، نئی منظر صاحب مائک پر قاری نئی منظر۔ بہت بہت مبارکباد محترم اور تحریر صاحب کو۔ حقیقت کے بعد 2 شعر بہت ہی نیک دل انسان یہ فاروق جاذب ہیں، بہت ہی نیک دل انسان یہ فاروق جاذب ہیں، یہی رکھنا ہمیں ہے
ध्यान ये फारूक जाज़िब हैं। और सजी है आज की महफिल ये जिनके वास्ते मंजर, सजी है आज की महफिल ये जिनके वास्ते मंजर। अदब की महफिलों की शान ये फारूक जाज़िब हैं। बहुत ही नेक दिल को भेज दीजिएगा, बहुत ही नेक दिल इंसान ये फारूक जाज़िब हैं। यासीन इब्न उमर साहब सीतापुर से आए, उनको मालूम है कि अजान हो जाए तो इससे पहले अगर शायद भारती गाएँ कि अजान हो रही, ये खुद ही खत्म कर देंगे। आप तो चीख रहे हैं अपने कराम चलवा सदर मोहतरम की इजाज़त चाहता हूँ और सबसे पहले फारूक जाज़िब साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। रिजवान भाई ने मुझे फ़ोन किया था, उनके हुक्म पर हाजिर हुआ हूँ। फारूक जाज़िब साहब को मैं वैसे तो नहीं जानता था, गायबाना तौर पर मैं यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं गायबाना तौर पर अखबारात के ज़रिए या रसाइल के ज़रिए से जानता हूँ, जिनसे आज रूबरू होने का मौका मिला है। रिजवान फारूकी साहब की बदौलत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और चंद अशार मैं उन्हें कहे हैं उनके लिए। अवध का वो शायर बहुत मोतबर है, अवध का वो शायर बहुत मोतबर है, वो अफकार की राह पे महवे सफ़र है, वो अफकार की राह पे महवे सफ़र है। निकलता नहीं देर तक ज़हन दिल से, निकलता नहीं देर तक ज़हन दिल से। हर एक शेर उनका बहुत बाअसर है, हर एक शेर उनका बहुत बाअसर है। कहीं वाज है तो कहीं पर नसीहत, कहीं वाज है तो कहीं पर नसीहत। कहीं उनके लब पर अज़ाने सहर है, कहीं उनके लब पर अज़ाने सहर है। बहुत शुक्रिया। कहीं वाज है तो कहीं पर नसीहत, कहीं वाज है तो कहीं पर नसीहत। कहीं उनके लब पर अज़ाने सहर है। अक़ीदत में डूबा हर एक शेर उनका, अक़ीदत में डूबा हर एक शेर उनका। हयात और सीरत पे गहरी नज़र है, हयात और सीरत पे गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया। तगज़्ज़ुल की परवाज़ भी खूब ऊंची, तगज़्ज़ुल की परवाज़ भी खूब ऊंची। निचोड़ा सदा अपना खूने जिगर है और कलम से बिखेरा है तिरतास पर जो, कलम से बिखेरा है तिरतास पर जो। वो फारूक जाज़िब का दस्ते हुनर है, वो फारूक जाज़िब का दस्ते हुनर है। और मताए सुखन में किया है इजाफा, मताए सुखन में किया है इजाफा। किया पेशकश किया पेशकश पर दुजा का गुहर है, किया पेशकश कशपत दुजा का गुहर है। बहुत शुक्रिया। जनाब यासीन इब्न उमर साहब, आपने आयतुल कुर्सी में सूरह बकरा वाली बातें सुना दी, बहुत अच्छी शायरी सुनाई। बिलखुसूस आपका ये शेर कि कहीं वाज है तो कहीं पर नसीहत, कहीं इनके लब पर अज़ाने सहर है। पूरी तारीख इसके अंदर है और बहुत से गोशे हैं जो कशफुद्दुजा वगैरह के हवाले से 10 साल 15 सफ़े में लिखेगा, वो आपने 15 मिसरों में बात तमाम कर दी। इसी के लिए शायर और शायरी मशहूर है। काबिल मुबारकबाद आप हैं और जिनके हमरा आए उनको भी अल्लाह सलामत रखे। ये हुस्न सलूक अब शायरों में कम रह गया। बहरहाल मैं खुश्ता रहमान तक पहुँचूँ, इससे कबल अज़ान होगी, नमाज़ पढ़ ली जाए, फिर पाकीज़ा फ़ज़ा में सदर मोहतरम हमारे पाकीज़ा हैं और जनाब डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब हैं, या जाएंगे नहीं ये भी तय हो गया। तो हम लोग इनको आखिर तक देखेंगे। पिछले प्रोग्राम में अहमद इब्राहिम मजमी साहब ने कलाम पढ़े बगैर में चले गए, उसका मुझे अफसोस दिया है। और अजमी साहब ने वो कलाम कहाँ गया जो उन्होंने कहा था, तो हमने जो तफरीक थी कहने नहीं कलाम है, वो कलामी इत्तफाक़ से कह के लाए, तो मुझे दिया भी उन्होंने खामोशी को। अब तीसरा दौर शुरू हुआ चाहता है और इस मुतबदी का आगाज़ के लिए मैं दावत देता हूँ मोहतरम हैदर अली साहब को, वो तशरीफ़ लाएँ। जो कुछ उन्होंने आज के साहिब जश्न के मुताबिक लिखा है वो आपके सामने पेश करें, या तक़रीर भी कर सकते हैं और शायरी भी पढ़ सकते हैं। लिफाफा से ट्रेन है, तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम फारूक जाज़िब एक जायज़ा। मोहतरम फारूक जाज़िब की शायरी और उनके सराफे को चंद लफ्ज़ों में कैद नहीं किया जा सकता।
एक दुबला पतला शख्स और उस पर उम्र मगर हौसलों में कोई कमी नहीं। लफ्ज़ों की उड़ान इंतहाई उरूज पे शायरी और अदब से जुनून की हद तक लगाओ। सैकड़ों शागिर्द और कुछ पर्दे में सैकड़ों शागिर्द और कुछ पर्दे में जुनून इस कदर कि हर नशिस्त में गदर कहना। जब मैं उनको देखता हूँ तो हैरत में डूब जाता हूँ। कितने ही तिफले मकतबों को चलना सिखाया, एक तवीम दीवान मुरतब कर दिया जिसका बोझ शायद खुद न उठा पाए। वो अपने बारे में फरमाते हैं, अंधेरा है जो मेरी जिंदगी में, उसे देखा है मैंने रोशनी में। उनकी शख्सियत कुछ इस तरह की है कि बेख्तियार दिल खिंचता है, मोहब्बत और खुलूस का चलता फिरता एक पैकेट, न गुरूर न तमकनत, हर एक की मोहब्बत से पेश आना। वो खुद कहते हैं, रंज देते रहे गम नवादा ही किए, चैन उनको ना मिला जख्म जिगर होने तक। बचाना एक भी तिनका मेरे नशेमन का, ये किसने आग लगा दी मेरे नशेमन को। और जब आज का माहौल देखते हैं तो बेख्तियार उनका कलम लिखने लगता है, फिक्र हो जिनमें वो अशार कहाँ से लाऊं, मीर गालिब का मायार कहाँ से लाऊं। मोहतरम जादिद साहब के उस्ताद मोहतरम सिफत साहब से जादिद तखल्लुस उन्हीं का अता करता है। उसके बाद जादिद साहब ने किसी को अपना उस्ताद नहीं बनाया बल्कि मशक़ सुफ़न जारी रखी और अपनी फिक्र के सहारे शेर व अदब का सफ़र जारी रखा। जादिद साहब को दीनी माहौल मिला और जज्बात और एहसासात में हुजूर की मोहब्बत कूट कूट कर भरी थी, इसलिए उनका रुझान नात की तरफ ज़्यादा रहा। काफ़ी अरसे बाद उन्होंने गज़ल की सिमत अपना रुख किया और उसमें भी नुमायाँ रहे। जो फ़क़त हक़ ही कहे, हक़ के सिवा कुछ न लिखे, आज मैं ऐसा कलमकार कहाँ से लाऊं। क्या क्या लाजवाब शेर कहे मोहतरम ने। फरमाते हैं, इस ख्याल ने डाला है मुझको उलझन में, गुनाहगार हूँ धब्बे पड़े हैं दामन में। सूरज के भरोसे ने कहीं का नहीं रखा, हम दिल को जलाते तो अंधेरा नहीं होता। 800 सफ़ात का दीवान लिखना कोई मामूली कारनामा नहीं है। कितना खून पसीना बनकर बदन से निकला होगा, ये हर शख्स के बस की बात नहीं है। हाँ, ये बात जुदा है कि इस दौर में अदब पढ़ने वालों का फुकदान है, हम कारी कहाँ से लाएंगे। ज़बान को चाहने वाले सैकड़ों हैं मगर पढ़ने वाले कहाँ हैं। अब न दुकानों के साहिब बोर्ड उर्दू में मिलते हैं, न घरों के दरवाजे पर नाम की तख्तियाँ। बहरहाल ऐसे दौर में मोहतरम जादिद साहब हैं, वहाँ ज़्यादातर मोहतरम जादिद साहब हैं। आपका दम गनीमत है कि आज भी उर्दू को सीने से लगाए हैं। मुशायरों में इनके लिए जगह नहीं है, वहाँ ज़्यादातर नाशायरों का कब्जा है। कहीं से माली मदद की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी ये उर्दू का मुजाहिद उर्दू की खिदमत कर रहा है। अल्लाह की उनकी उम्र में बरकत दे, कलम में ताकत दे, आमीन। मोहतरम जादिद साहब हर सिम्त पर अपने कलम से फूल खिलाते हैं मगर उनका रुझान नात गोई की तरफ जाता रहा। ये अल्लाह की देन है, वो जिससे चाहता है वो काम ले लेता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि नात गोई उनकी बख्शिश का दरिया बन जाए, क्योंकि नात कहना आसान नहीं है। ये बाल से बारीक सिर्फ है जिसमें दिलो दिमाग ही नहीं कलम को भी काबू में रखना होता है। और अल्लाह ने ये तौफीक जादिद साहब को अता फरमाई और हज़ारा नातें कह डाली। अल्लाह उनका ये नजराना कबूल करे और ये उनकी बख्शिश का दरिया बने, आमीन। शानदार मकाला पेश किया मोहतरम हैदर अली साहब ने और उन्होंने कहा कि मोहब्बत और खुलूस की चलती फिरती दुकान है जनाब फारूक जादिद साहब। खुलूस व मोहब्बत की चलती फिरती दुकान उन्होंने कहा और वाकई ये खुलूस व मोहब्बत ही है जो कि आज के दौर में बग़ैर लिफाफे के लोग अपने घरों से निकलते हैं, घंटों बैठते हैं और किसी शायर एक ही आदमी के मुताबिक इतना कुछ सुना जाता है। लोग कम सही लेकिन हर आदमी बामकसद है। फारूक जादिद साहब काबिल मुबारकबाद हैं और दूसरे असाद भी जो आज तशरीफ़ लाए। इन सब में यकीन बात दीगर काम करना है, इस खौफ के बगैर कि लोग कितने आएंगे। अगर यही प्रोग्राम एक कमरे में समेट दिया जाए तो लोग कहें कि साहब बहुत लोग थे, लेकिन क्योंकि मंसूर खान साहब का ये हाल काफ़ी फैला हुआ है, यहाँ जब तक 60-70 लोग से ऊपर ना हो तब तक लगता नहीं कि यहाँ जगह है, या इसको महदूद कर दिया जाए। जहाँ से ये पक्के हैं यहीं से कनात वगैरह लगा दी जाए और कहा जाए इसी हिस्से में बैठना है, या बिल्कुल जो किनारे एक बॉर्डर है वहाँ से लेके यहाँ तक लोगों को बैठाया जाए तो भीड़ मालूम होगी। तो ये सब कुछ किया जा सकता है, या जो अंदर कमरे हैं उनको अगर वो अदब की खिदमत के लिए वक्त करते हैं तो वो प्रोग्राम ज़्यादा अच्छे होने लगे इस फैली हुई जगह के मुकाबले में।
لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔